Hello guys, today it's 24 November and today is the topic we talked about the business yesterday, that how what the business can do and what are the aspects covered in the business, and today we cover some of the strategies used in the business. So as you don't know that I am the student of this CA means a chartered accountant, and in this, we are studying the taxation, finance, accounts, and many other subjects. And one of the subjects we have studied in this, that is strategic management. So we have studied many topics in strategic management. Strategic management means that something management that business, the management which are been responsible for making the strategies, for making the techniques, or for making the further analysis in the business. So this defines the vision. Vision means a blueprint of an organization which defines that where the company will go in the future. Mission, that company which what is the company is doing right now, and what and for which company will be known, and other goals and objectives cover many aspects. So, in strategic management, there are three levels of business strategies. First of all, is corporate level, second is business level, and third is functional level. So, first of all, we talk about the corporate level. Corporate level includes the top level facilities, top level management, who includes CEO, managing director, MD, board of directors, and other persons which are responsible for making strategies and providing the path to the lower persons or the employees or the business managers to work upon it. They are basically on the top level. The strategies included in the corporate level are, first of all, is there are different strategies of corporate level. First is stability. Stability means when the corporate level does not want to expand its business to the next level, they only want to be in the business in which they are, and they are not changing more, but going changing some things in their businesses. Only few things are changes, and they are been running their business in the same manner for the multiple years, multiple times, and with a stable growth. The stability strategy is used because when the expansion is too much and the business wants to stable all the expanded things, and when the business managers, business owners are comfortable in their own strategies, or they have earned many growth or many maturity levels in their products, that's why they use the stability strategy. Second is the expansion strategy. First of all, we have studied the stability strategy. इन दिस स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो हम एक ही चीज़ में काम करते जा रहे हैं, उसमें क्या, अगर कोई बिजनेस पर्सन कंफर्टेबल हो चुके हैं, या फिर वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल पे उनका प्रोडक्ट पहुंच चुका है, तो इसीलिए वो स्टेबिलिटी यूज़ करते हैं. सेकंड में है, सेकंड इज द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी. दे हैव बीन यूज्ड व्हेन द बिजनेस पर्सन्स आर वेरी advantages, very rivalness, and they want to expand their business, expand their products, expand their earnings to the next level, and want to expand their business in the next level, or go to ahead of the competition. That's why they use the expansion strategy. Expansion strategy में भी आगे other अलग अलग strategies है. There are different strategies also in the expansion strategy that the business organization, business level, business managers are used. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द मर्जर में क्या होता है कि अगर एक्सपेंड हमने करना है, तो हम चार तरीक़ों से, 4 ways टू एक्सपेंड देयर बिजनेस. फर्स्ट इज मर्जर. मर्जर में क्या होता है कि हम किसी कंपनी के साथ मर्ज करके अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं.
अगर हम मान लो कोई टायर की कंपनी बना रहे हैं तो हम दूसरी टायर की कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हैं। कोई डिफरेंट, जैसे टायर के साथ अंदर जो रबड़ यूज़ होता है, हम रबड़ की कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं, ताकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अप द प्रोडक्ट है वो कम हो जाए, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए, हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएँ, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि हाँ, ये मर्जर्स के अंदर हो गया। एक हम होता है कि मर्जर बिल्कुल ही अलग कंपनी से कर लें, मालूम हम टायर बना रहे हैं तो हम रियल एस्टेट में चले जाएँ, या हम अंडों के बिज़नेस में चले जाएँ, अलग अलग तरीक़ों के बिजनेसेस में चले जाएँ, तो उसको भी हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशंस हो गए, और इसमें आ गया हमारा एक और मेथड आ सकता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में ये नहीं होता कि दो कंपनियां मिल जाती, बस उसमें सिर्फ strategic alliance and they are only agreement between the two organizations that they want to be in the together to do their businesses further। ठीक है, दो कंपनियां आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं जिससे ये वो चाहती हैं कि दोनों मिलकर आगे अपना इकट्ठा बिजनेस करें। इसमें देयर आर नॉट लीगल compliances और लीगल formalities to be done in the strategic alliance, they or only the agreement done between them, but they are also called an MOU, मेमोरेंडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि टाटा टाटा कॉफ़ी और स्टारबक्स ने दोनों में अपने आप में दोनों में स्ट्रेटेजिक अलायंस हो चुके हैं कि, और मारुति सुजुकी भी आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस से काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टाटा कॉफ़ी अगर अपनी कॉफ़ी बनाकर बेचेगा, इफ़ द टाटा कॉफ़ी begins to sell their own coffee, it's so difficult to sell their own coffee, or in other way, in the case of Starbucks, which is a foreign company, which is a US based company who wants to come in India to do the businesses, but they are very difficult for them to establish so many restaurants, so many setups to do the business. They are more expensive, more organization, and people do not trust on the foreign company immediately because they have to, बिकॉज दे आर, क्योंकि उन्होंने मिलावट की होती है, उनको एकदम से दूसरे जो डोमेस्टिक प्लेयर, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं वो उस पर विश्वास नहीं कर सकते। पर टाटा एक ऐसा नाम है जिस पर कि हर बंदा विश्वास कर सकता है। जब टाटा का नाम स्टारबक्स के साथ जुड़ जाता है तो एक तो उनका भी, टाटा कॉफ़ी को भी बिजनेस मिलता है। टाटा कॉफ़ी अपनी कॉफ़ी स्टारबक्स को बेचती है और स्टारबक्स अपनी कॉफ़ी यहाँ पे बनाकर बेचता है, तो दोनों को आपस में एग्रीमेंट हो गया और दोनों अपना बिजनेस साथ में कर सकते हैं। सो तो क्या हो गया कि दोनों को बेनिफिट मिल गया, दोनों कंपनी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया। ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट मिल गया कि वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट है, उनकी दोनों की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो लो पर यूनिट बन गई, प्रॉफिट मार्जिन दोनों कंपनी के अच्छे हो गए। इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल वे में भी आ गया कि उनको ज़्यादा लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं करने पड़े फॉरेन कंपनी को, और उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया लोकल कंज्यूमर्स में। तो ये हो गया। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट लेवल में इतने पहले हमने स्टेबिलिटी पढ़ा, फिर दूसरे में हमने पढ़ा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हमें पढ़ा मर्जर्स, कि हम मर्जर कर सकते हैं दूसरी कंपनी के साथ। एक हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर हम अलग कंपनियों में चले जाएँ, हम दो पुरानी कंपनियों को मिलना नहीं चाहें, पर हम अपने ही कंपनी को दूसरे प्रोडक्ट्स में, दूसरे सेगमेंट्स में, दूसरे ज्योग्राफी, दूसरी चीज़ों में एक्सपेंड करें, डाइवर्सिफाई करें। सो इन दिस वे, एंड उसमें हो गया, हमने एक और चीज़ पढ़ी कि स्ट्रेटजिक अलायंस वो एक मर्जर की तरह ही होता है, पर मर्जर में लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, दोनों कंपनियां आपस में मिलती हैं, NCLT का अप्रूवल लगता है, ROC का अप्रूवल लगता है, CG का अप्रूवल लगता है, हर चीज़ प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती है। पर एक स्ट्रेटजिक अलायंस में सिर्फ एक एग्रीमेंट है, इन दिस ओनली द एग्रीमेंट इज डन, नॉट द लीगल कंप्लेंट इज ऑल्सो बीन डन। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी स्ट्रेटजी हमने कॉर्पोरेट लेवल में पढ़नी है, retrenchment strategy. Retrenchment strategy is used when the company are in losses, negative losses. The competitors take over their market share. Negative growth हो रही है, negative, और कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही, कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं लेकर पा रही, मार्केटिंग नहीं हो पा रही कंपनी से, कंपनी की सेल्स डाउन हो रही हैं। तो retrenchment strategy is used when the company are in negative state and not able to earn the good profits। तो इसमें भी रिट्रेंचमेंट में भी हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहला आता है कि टर्न अराउंड, सिंपल कि टर्न अराउंड, कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती है, अपनी एफिशिएंसीज को
चेक करती है कि इसमें कंपनी में क्या दिक्कत आ रही, कंपनी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, कंपनी का रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उसमें हम ये चीज़ें चेक करते हैं। तो उसमें उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड थिंग, कि कंपनी अपने आप को टर्न अराउंड कर रही है, कि हमने क्या गलती करती है, अपने आप को एवेल्यूएट करती है, अपनी स्ट्रेटजीज को एवेल्यूएट करती है। तो उसमें ये चीज़ आ गई। दूसरा हमने इसमें पढ़ना है कि अगर टर्न अराउंड करने के बाद इफ द कंपनी इज स्टिल इन लॉसेज आफ्टर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, देन दे आर द सेकंड पार्ट इज द die investment. Die investment means the selling of the negative portion. Die investment means कंपनी अपने नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव जो बिजनेसेस है जो उनको ज़्यादा लॉसेस दे रही हैं, जो पार्ट्स, जो प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को बंद कर रही है, जो अपने डिपार्टमेंट्स को बंद कर रही है जिसमें कि उनको बहुत सारे लॉस हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट आना जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये भी उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर ही आती है। तो उसमें क्या होता है, ये लिक्विडेशन की तरह नहीं होता, इसमें सिर्फ हम उस पार्ट्स को, दिस इज नॉट अ सिमिलर टू द लिक्विडेशन, इट इज नॉट एज अ लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। इन दिस ओनली द लॉस मेकिंग यूनिट्स और आर क्लोज्ड so that company can be make more profits in their further growth. और थर्ड पार्ट इज, उसमें अगला हम देखना है कि हम उसके बाद रिट्रेंचमेंट में हम देखेंगे, अगर डाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद, टर्न अराउंड करने के बाद भी अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही तो उसके बाद करेगी लिक्विडेशन। अगर कंपनी सारी अपनी जिद्दतें लगा सकती हैं, कंपनी हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू डू द बिजनेस, इज ट्राइड मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज टर्न अराउंड कर दिया, अगर कंपनी ने डाई इन्वेस्टमेंट कर दी, छोटे छोटे अपने लॉस मेकिंग यूनिट्स को बेच दिया, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी भी कर दी, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि लिक्विडेशन कर दी, अपनी कंपनी के अपनी परमानेंट क्लोज कर दे, प्रॉपरली क्लोज कर दे, ताकि जो डायरेक्टर्स है, जो प्रमोटर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ, उनको लॉस ना हो, कंपनी के पास इतने एसेट्स मेन बच जाएं ताकि कंपनी अपना सामान बेच के, अपना एसेट बेच के जितने लॉस और कदर ना करे। और फिर कंपनी को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कंपनी को बंद करना उसको चलाने से ज़्यादा बेटर है, तो कंपनी उसमें लिक्विडेशन कर सकती है। ठीक है, आज हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी। उसके बाद एक फोर्थ स्ट्रेटजी भी आती है कॉर्पोरेट लेवल में, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी। जैसे कि कंपनी, in the face of companies there are multiple products, multiple segments, multiple businesses are run throughout the businesses of the companies. For example, in the case of Tata, there are multiple businesses are being run together. For example, Tata Sons is a mother company, parent company, and there are under Tata Motor, Tata Steel, other children companies or their child companies or their subsidiaries companies which are run together. Tata Steel, Tata Motor, Tata Power, Tata Coffee, multiple companies are run, and they have different creditors, different competitors, and they are not using the same strategy at all in the one time. They are using different strategies at all the businesses. इसका मतलब ये कहने का भाव ये है कि कंपनियों में अलग अलग फेजेस में, अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में एक ही स्ट्रेटजी यूज़ नहीं हो सकती। कईयों में एक्सपेंशन चल रही होगी, कईयों में स्टेबिलिटी चल रही होगी, कईयों में रिट्रेंचमेंट चल रही होगी। कि कंपनी तो कंपनियों में अलग अलग तरीके से चल रही होती हैं, कि कईयों में रिट्रेंचमेंट चल रही होगी। कंपनियां हमेशा एक ही फेज में काम नहीं करती। तो ये है कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज आज हमने डिस्कस किया। फॉर टुडे दिस इज इनफ। सो टुमारो वी विल डिस्कस द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, that how corporate level persons, which includes board of directors, MD, distribute their work to the lower level or middlemen, which are further expand their businesses to the functional level. So we will discuss further in next season, next video. So that's for today. Thank you guys.